Thank you so much for tuning in. I'm Amita Balachandra. We're going to talk about LPG cylinder price hike because LPG cylinder prices have been hiked for the fourth time. Yet again, LPG cylinders were increased by 25 rupees as of Monday, and this is just in 1 month. After the latest price hike, a 14.2 kilogram a domestic LPG cylinder will now cost 819 rupees in Delhi, up from 794 rupees. In Kolkata, it's retailing at 845 rupees, which is the highest rate among all metro cities. This also comes at a time when fuel prices are also soaring. So what we're going to try and understand today is why this is happening, why are prices continuing to be hiked, how will this impact the consumer, and most importantly, what's the breakup and how much are we paying in taxes? Chandra Prakash, who is the president at All India LPG Distributors Federation, joins us right now. Chandra Prakash, thank you so much for joining us. My first question to you is this, that we know that prices are obviously linked to global prices, but if global prices continue to go up, how much more are prices likely to rise? Because this is the fourth time that's happening in just 1 month. Generally, in winters, we have seen that in last 30 years, generally in winters, in international market, the LPG as a product, the finished product of LPG, and also the crude prices always go upwards. So from October onwards, the prices of LPG generally increases. But in last 7-8 years, the price mechanism has been changed. Earlier, it was only one price of the cylinders, of domestic cylinders. Now, there is a two price. One is the subsidized cylinder, the second is non-subsidized cylinders. While companies delivers the cylinders to distributors on non-subsidized rate, and we charge from the customers non-subsidized rate of LPG product 14.2 kg, and the 19 kg, the commercial cylinder, that is the price mechanism is totally on the import parity rate, based on import parity rate. So from November onwards, the LPG price increases. I don't think so that in future, in April or in summers, the further price will go up. It may reduce. It may reduce. I can't predict because the decision-making authorities are oil companies, so I can't predict anything. But generally, when summer starts from April onwards, the price always goes down. So you're saying that there are chances of the price going down. April से शायद कम हो सकता है, यही बोल रहे हो आप? क्योंकि डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस जो हाइक हुआ है दिसंबर से 225 रुपीस से हाइक हुआ है दिसंबर से. हाँ. ये देखिए, लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे 2019 and 20 टिल फरवरी, ये लास्ट ईयर भी बढ़ा था. लास्ट ईयर फरवरी में शायद 150 रुपीस के करीब इंक्रीज हुआ था. तो ये नई चीज नहीं है कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में प्राइस राइज होता है. और ये आज का नहीं, 7-8 साल पहले जब से ये डीबीटीएल से लिंक किया है, तो सब्सिडी तो डायरेक्ट जो सब्सिडी का रेट है गवर्नमेंट डिसाइड करती है. डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास तो जो भी नॉन सब्सिडाइज्ड रेट पे आता है, ही चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स द सेम थिंग. Explain to us the tax breakup as well, because there is, like you pointed out, import parity pricing mechanism, which is how the price is arrived at, and the government sets the price every month. लेकिन क्या ये अच्छा तरीका है to come up with the pricing mechanism itself, because that's been debated a lot on whether this is the best way to go about it. देखिए, अभी तो ये काफी सालों से यही प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है. इंपोर्ट पैरिटी रेट पे ही डिसाइड होता है एलपीजी प्रोडक्ट, क्योंकि तकरीबन 80% जो प्रोडक्ट है एलपीजी वो इंपोर्ट होती है, और 20% के करीब जो है वो हमारी इंडिजिनियस प्रोडक्ट है, जो हमारे यहाँ से तेल के कुएं से क्रूड निकलता है, उससे जो प्रोडक्ट जो इंडियन इंडस्ट्री जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं
ये खुद रिफाइन करती हैं। मैं जो 80% के करीब जो है वो एलपीजी इंपोर्ट होती है। और जो भी इंपोर्ट, अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट में काफी आजकल बहुत उतार चढ़ाव है। गल्फ कंट्रीज हैं, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, तो वो प्राइसेस उसमें डिपेंड करता है। और काफी इसमें अभी आपके खास करके कोरोना के टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम थे, तो गवर्नमेंट ने करीब कोई 7-8 महीने कोई इसका प्राइस इंक्रीज नहीं किया। और सब्सिडी जो थी वो ऑलमोस्ट जीरो रही। नवंबर के बाद, नवंबर में आके, दिसंबर में आके पहली दफा ये प्राइस बढ़ा है पिछले 8-10 महीने के अंदर। और जहां तक इस पे ड्यूटी है, ड्यूटी तो इस पे ये तो जीएसटी के अंदर है ऑलरेडी एलपीजी तो इस पे बड़ा नॉमिनल है, 5% जीएसटी है डोमेस्टिक सिलेंडर पे, और कॉमर्शियल पे 8। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में रेट बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है। इसमें कॉमर्शियल जो है उसके अंदर भी पिछले 3-4-5 महीने से क्या कहते हैं प्राइस इंक्रीज हुआ है। हालांकि जहां तक सब्सिडी का सवाल है वो तो आपको तेल कंपनियां ही जवाब दे सकती हैं या सरकार जवाब दे सकती है। हमारा काम तो सिर्फ सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स करना, टाइमली विद सेफ्टी हम उपभोक्ता के घर पे गैस पहुंचा दें, हमारा काम मेन वो है। But shouldn't or isn't the government absorbing most of the increase? Because you were talking about subsidy. आपने कहा कि शायद आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सब्सिडी की बात एक चीज है, because from May 2020 under the Ujjwala scheme, it seems that a lot of people have stopped subsidies, or subsidies have largely eroded for LPG cylinders, and that essentially means that बहुत सारे लोग हैं, कंज्यूमर्स जो है, उनको दे विल हैव टू बेयर द कॉस्ट। देखिए, जहां तक उज्ज्वला के जो कस्टमर्स हैं, उज्ज्वला बेनिफिशरीज हैं, ये शायद विश्व में एक सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है भारत सरकार की। ऐसा विश्व में इतने ज्यादा कनेक्शन, फ्री कनेक्शन कहीं भी किसी भी देश में नहीं दिए गए। और इसमें बहुत सी जो महिलाएं हैं, जो कभी आने वाले 10 साल में भी नहीं सोच सकते थे कि वो गैस कनेक्शन खरीदेंगे, वो भारत सरकार ने, मोदी जी ने इनको फ्री कनेक्शन दिए हैं। हाँ, उसमें से कुछ परसेंट ऐसे कस्टमर्स हैं जो अगर प्राइस राइज होता तो उनकी परचेजिंग पावर पे फर्क पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब 80% जो उज्ज्वला बेनिफिशरीज हैं वो साल में 3-4 सिलेंडर जरूर लेते हैं। बाकी जो कस्टमर्स हैं वो किसी वजह से, या तो उनको जो ईंधन है, दूसरा जो ट्रेडिशनल जो फ्यूल है, लकड़ी है, डंक, आपका काऊ डंग है, ये सब उनको खेतों में, गांव में मिल जाता है, तो इसलिए वो उनको सस्ता पड़ता है, ऑलमोस्ट फ्री पड़ता होगा। तो इस वजह से वो पूरा 100% एलपीजी के सिलेंडर को वो कंज्यूम नहीं करते। उसी को देखते हुए तेल कंपनियों ने, सरकार ने एक ऑप्शन दी है अभी 2-3 साल पहले, कि अगर वो 14.2 kg के सिलेंडर को 5 kg के 5 किलो के सिलेंडर में बदलवाना चाहें तो वो 5 किलो का सिलेंडर ले सकते हैं। तो उनमें एट वन टाइम आजकल तकरीबन उसका जो प्राइस है, आरएसपी जो है वो तकरीबन 300 रुपए के करीब है। तो वो एट वंस, अगर वो 700 या 800 का सिलेंडर एक दफा पे नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए 5 किलो का सिलेंडर अवेलेबल है। बट इसमें एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि कम से कम जो धुआं होता था घर में, और जो उसमें काफी, जो आप WHO के या हेल्थ डिपार्टमेंट के आप डेटा देखोगे, तो उसमें काफी वो सुधार हुआ है। धुएं से जो महिलाओं को कम से कम एलपीजी उज्ज्वला से उनको मुक्ति मिली है, उनको धुएं से बड़ी राहत मिली है। हाँ, इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। जैसे उज्ज्वला के जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको मैं मानता हूं कि उनको सब्सिडी की जरूरत है। वो उसका सही से इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब उनको सब्सिडी जारी रहेगी। इसमें बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं जो पहले सब्सिडी ले रहे थे। देखिए, जब ये 2014-15 में गिव इट अप स्कीम आई थी, तो करीब 1.25 करोड़ लोगों ने सब्सिडी ऑप्ट आउट की थी, सब्सिडी छोड़ दी थी, सब्सिडी गिव अप की थी। लेकिन वो एक स्टेज पे आके रुक गई धीरे धीरे। लेकिन अभी एक बहुत सा तबका ऐसा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सब्सिडी की एक्चुअली में जरूरत नहीं है, बट वो क्योंकि सरकार सब्सिडी उनको प्रोवाइड कर रही थी, वो उसका फायदा उठा रहे थे। तो उनको सब्सिडी ना देके
और वो उज्ज्वला कस्टमर्स को ट्रांसफर होनी चाहिए। और अगर इसको उज्ज्वला स्कीम को और बेहतर इसको सक्सेस करना, कामयाब करना है, तो उज्ज्वला के उपभोक्ताओं को जरूर इसमें सब्सिडी जारी रहनी चाहिए। अभी भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ मीडिया में इसमें आ रहा है कि सब्सिडी कट कर दी है। ऐसा नहीं है। कुछ मेट्रोज को छोड़ के बाकी जगह पे, ज्यादातर जगह पे उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल रही है। अमाउंट एक अलग इश्यू है, कम या ज्यादा, बट ज्यादातर जगह पे करीब को 60-70% एरिया जो हैं पूरे देश के अंदर, वहां पे सब्सिडी अभी भी सरकार द्वारा दी जा रही है। But to be fair, there's been a cut in petroleum subsidy because it was cut from 40,915 crore rupees. For 21-22, it was cut to 12,995 crore rupees. So जो allocation है वो कम हो गया है। हाँ, एलोकेशन काफी कम हुआ है। वो तो मैं बजट का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, सरकार की तरफ से मैं जवाब नहीं दे सकता। वो तो सरकार ही जवाब देगी कि उन्होंने क्यों सब्सिडी का बजट घटाया है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि आगे जाके शायद प्राइसेस इंक्रीज नहीं होगा अगर ग्लोबल प्राइसेस, कंसीडरिंग इट्स लिंक्ड टू ग्लोबल प्राइसेस, अगर ग्लोबल प्राइसेस गो अप देन व्हाट हैपेंस? बहुत कम चांस है कि ये गर्मियों में जाके इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एलपीजी के प्राइस बढ़े, क्योंकि पिछले 25-30 साल से हम देख रहे हैं कि गर्मियों में, समर्स में ज्यादातर ये कभी प्राइस इंक्रीज होते नहीं है, अनलेस कोई ऐसा कोई बहुत मतलब अजीबोगरीब कोई हालात ऐसे पैदा हो जाए, तो उसका तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। बट जनरली कभी भी गर्मियों में अप्रैल के बाद डाउनवर्ड शुरू होता है, प्राइस घटते हैं, बढ़ते नहीं है। इसमें आपको एक और चीज बता दूं मैं कि एलपीजी एक काफी साफ सुथरा ईंधन है और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है अभी हाल फिलहाल में, कम से कम हमारे देश में तो नहीं है। शहरों में कुछ जगह पीएनजी आई है, पाइप नेचुरल गैस आई है, जिससे एलपीजी पे अफेक्ट पड़ा है, और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस अब ये पाइपलाइन पे है, लोगों के घरों में ये Okay. So for now, it seems like the consumers will have to bear the brunt because LPG cylinder prices have been hiked again for 4th time in 1 month to by 25 rupees on Monday. And after the latest price hike, it's gone up to 819 rupees just in Delhi, up from 794 rupees. Mr. Chandra Prakash of the All India LPG Distributors Federation, they're telling us that perhaps it won't increase going forward. We'll really have to see how this pans out. But Mr. Prakash, thank you so much for joining us.